So, my dear friend, can you hear me? Yes, sir. और स्क्रीन दिख रहा है आपको? Can you see the screen? Yes, sir. Okay, nice. So today's topic is आज का जो topic है my dear friend, that is called PDP, Personality Development Program. आप इसको पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग भी बोल सकते हैं आप. पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग, राइट? So whenever you start personal development planning, इसमें क्या क्या होता है? There are several skills, my dear friend, like communication skills, presentation skills, bargaining skills, interpersonal skills, and several thousands of skills are there, my dear friend, right? And out of all these skills, the very important part of that is called communication skill, right? And in this communication skill is very important, you know very well. But today I would like to tell you, आज हमारा जो topic है, that's called goal setting. Can you see the screen? Goal setting, everybody? Yes. Okay. So today's topic is goal setting, and the objective of this is to understand the importance of setting goals in life. Means you have to understand what are the importance of setting goals in life and how to go about in setting goals and achieving them. Means how do you set the goal, how do you achieve the goal, and how do you follow. How to set, how to follow, and how to achieve. All these are very important in my life. Right? So let us see about this one. What are goals? First of all, we have to say, we have to ask the question, what are goals? Right? So what are goals? Whenever we talk about this one, Madhulika, Madhulika Samati, that's nice, very good. So let us see Yes, goals. sir. Okay. I was thinking that you have not registered, but you are registered. Thank you. So what are goals? Goals are specific, defined, clear, measurable and written down. जो भी आप गोल सेट करते हैं, आपने लिखा है गोल को क्या आप लोगों ने? Have you written the goals? Yes, sir. Yeah, goals must be written. Goals written होनी चाहिए, because जो सोचा हुआ चीज है that you could forget, वो भूल सकते हैं आप. So whenever you think, must write down the goals. Goals को जरूर आप लिख लें. Only you can follow the goals, right? Okay. So they are a prioritized list of things you want to do in your life in the short, intermediate, and long-term goal. The Chandra Kumari, Chandra, Yes, sir. कुछ गोल के बारे में बताएंगे आप? उसकी पत्नी का नाम रमा था, उनको एक बेटा था। गोल की डिफिनेशन बताऊं सर? हाँ, कुछ भी बताइए गोल के बारे में. गोल होता क्या है, आपने सेट कर रखा है कि नहीं? यस सर. बताइए प्लीज. सर किसी भी टारगेट को अचीव करना एक लिमिट टाइम में, फिक्स टाइम में, इसी को गोल बोलते हैं. अच्छा, वेरी गुड. और बताएं इसके बारे में, कुछ और भी बोल सकती हैं तो. चलिए नीतीश भाटी आप बताएं प्लीज. नीतीश भाटी.
इट इज वाटी। शिखा कुमारी बताएं प्लीज। Yes, sir. गोल के बारे में कुछ बोलिए आप। Goals are something we are aiming that we think aim that is goal. सर हाँ बोलिए, टेल मी प्लीज। कौन बोल रहे हैं? सर नीतीश? goals are that thinking in advance what is to be done. ओके, चलिए बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने। अब मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू। Sir? हाँ बोलिए प्लीज, टेल मी। So goals are basically, we can say goals should be smart. Smart means specific, measurable, realistic, and we can say कि realistic and time bonded. मतलब सर जो हमारा गोल होना चाहिए वो स्पेसिफिक, मेजरेबल और कितने टाइम के अंदर हमें उसको अचीव करना है, वो टाइम बॉन्डेड भी होना चाहिए. देन ओनली वी कैन अचीव आवर गोल्स. बहुत अच्छा, दैट्स वेरी गुड, दैट्स नाइस। चलिए, अच्छा, गोल्स वीएस ड्रीम। समटाइम्स क्या होता है, हम जो ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं गोल से, बट दोनों बोथ आर डिफरेंट। जनरली क्या होता है, समटाइम्स गोल्स आर यूजुअली कंफ्यूज विद होप्स एंड ड्रीम्स। जैसे हमने कहा कि आपके पापा का आपसे क्या क्या होप हैं, या आपको अपने लाइफ से क्या होप्स हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं। तो होप्स एंड ड्रीम्स बोथ आर गोल्स और बोथ आर नॉट गोल्स, दे आर जस्ट विशेस, है ना। ये क्या होते हैं आपके दिमाग में जो चल रही होती हैं, दीज आर जस्ट विशेस, बट दिस कैन नॉट बी गोल्स। गोल्स करने के लिए क्या करने पड़ते हैं? इनके लिए वी हैव टू सेट द गोल्स। क्या करने पड़ते हैं? वी हैव टू सेट द गोल। आपने सुना भी होगा कि कुछ अच्छी चीजें जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे आप 7 बजे उठना चाहते हैं सुबह में, तो उसके लिए 10 बार सोचना पड़ता है कि मुझे अब 7 बजे उठना है, अदरवाइज लेट से उठने की तो आदत अपने आप लग जाती है ना। तो द सेम वे जब भी गोल सेट करना होता है तो गोल हमें सोचना पड़ता है, वी हैव टू थिंक प्रॉपर्ली। लेकिन सपने देखने के लिए, विशेष के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाते हैं। जैसे हवाई जहाज चल रही है तो आपके दिमाग में आ गया, काश मैं पायलट बन जाता, काश मेरा हवाई जहाज होता, है ना। ये विशेष हो जाते हैं, इसको हम गोल्स नहीं कह सकते। गोल्स के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अगर हवाई जहाज भी खरीदनी है तो कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। लेट अस सी हाउ टू सेट गोल्स। गोल्स को सेट करने के लिए क्या करना चाहिए? स्टार्ट विद लिटिल गोल्स एंड बिल्ड अप। अच्छा देखिए, गोल का मतलब क्या होता है। गोल ज्यादा होनी कि बहुत बड़ा गोल लिया जाए, छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। जैसे इमेजिन करें आपके पास ये 50 रुपए का कलम होगा, अब सोच लें कि मेरे को 400 रुपए का कलम चाहिए, है ना, या 1000 रुपए का पेन चाहिए, और कब तक चाहिए वो भी लिख लें, आपकी 1 महीने के अंदर चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें इसको नोट डाउन करना होगा, रिटन डाउन करना होगा, नहीं तो कल आप भूल जाएंगे, है ना। टुमारो यू विल फॉरगेट, क्योंकि बहुत सारी चीज दिमाग में चलती रहती है। तो जब तक इसको राइट डाउन नहीं करेंगे तो ये गोल नहीं बन पाएगा। तो स्टार्ट विद लिटिल गोल्स एंड बिल्ड अप, राइट देम डाउन, उसको नोट कर लें आप। कीप देम क्लियर, वो क्लियर विजिबल होनी चाहिए, सबको दिखना चाहिए कि आपने क्या गोल सेट किया है। चार्ट द ऑब्स्टेकल्स, एंड उसको पाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपके पास आएंगी, है ना। क्या उसको पाने के लिए प्रॉब्लम आएगी कि नहीं? मधुलिका बताएं प्लीज। मधुलिका, यस सर। गोल्स को Yes, प्राप्त sir. करने में हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती हैं? ऑब्स्टेकल्स सर आते आते हैं। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं. यस, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। कुछ तो हमें पता होता है ना, हमें पहले से पता होता है Yes. कि अगर मैं 1000 का पेन लूंगा तो मेरे मम्मी पापा कहेंगे कि तुम क्या करोगे, अभी स्टूडेंट हो, है ना। 1000, अगर घर की प्रॉब्लम अच्छी नहीं है, माली हालात अच्छे नहीं है, तो 10 बंदे बोलेंगे कि 1000 रुपए का पेन लेके क्या करोगे, राइट। Yes, sir. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको जब आप छोटी छोटी चीजों को भी आप बिल्डअप करना चाहते हैं। तो कुछ हमें पता होता है, कुछ ऑब्स्टेकल्स हमें पता नहीं होता है।
उसके बाद अपने टेक एक्शन, एक्शन करना है कि आप उसे कैसे लेंगे, हाउ टू अचीव, है ना। व्हाट टू अचीव तो आपने कर लिया, अब हाउ टू अचीव एंड लास्ट में स्टे ऑन पर्पस। अब आपने 1 महीने का टाइम दिया है तो 1 महीने तक आप उसको स्टे करना पड़ेगा, उस पर देखना पड़ेगा, पर डे आपने उस पर काम करना होगा, तब जा करके वो अचीव होगा गोल में। तो हाउ टू सेट द गोल में हमने कहा स्टार्ट विद लिटिल गोल्स एंड बिल्ड अप। सेकेंड था राइट देम डाउन। तीसरा था कीप देम क्लियर। फोर्थ था चार्ट ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स बना लीजिए जो आप जानते हैं कि प्रॉब्लम आने वाली है। टेक एक्शन एंड स्टे ऑन पर्पस। इसको नोट करते जाएंगे सभी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये क्वेश्चन आता है सर, हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन गोल्स। अब जैसे इमेजिन करें हमने मर्सिडीज लेने का गोल बना लिया है, राइट, तो उस पर हम फोकस कैसे करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमने आज सोच लिया, कल हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो मिलान उसके लिए क्या करना चाहिए कि हम भूलें ना इसको। मिलान, प्रवीण वर्मा, व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए कि हम भूल ना पाए गोल को। तो नोट डाउन कर लेना चाहिए। यस, तो उसको कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए, कहीं और नोट डाउन करना चाहिए। नहीं सर, कहीं और जहाँ पे हम डेली सेट कर सकते हैं, निकलते पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे दोस्त ने, पता है हमारे दोस्त मोटिवेटर हैं, उन्होंने ये कहा कि जहां आप सोते हैं ना, तो पाँव के साइड जब से आप देखते हैं तो सबसे पहले पाँव के साइड में देखते हैं, तो सो के उठे तो वहां पे सटा हुआ होना चाहिए आपका गोल, वहां दीवार पे लिखा होना चाहिए आपका गोल, आपके मोबाइल में गोल सेट होना चाहिए, है ना। मतलब जिधर देखें आपको गोल ही गोल दिखाई देना चाहिए, स्टिक इट एवरीवेयर, जहां पे आपका है कि नहीं। और रीड एवरी डे, उसको 10 बार पढ़िए, डेली के डेली पढ़िए उसको, गोल को याद रहेगा। कहते हैं ना, इस ब्रेन को जितना ज्यादा बार पढ़ते हैं इस ब्रेन से, वो अपनी ब्रेन में चली जाती है बातें। एलिमिनेट एक्टिविटीज दैट डोंट हेल्प, और कुछ चीजें जो उसके लिए जरूरत नहीं है उसको हटा दें, डिलीट कर दें। डिस्कस प्रायोरिटीज या प्रोग्रेस विद फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स एज ऑफन एज पॉसिबल, उसके बारे में अपने दोस्तों से, जो पॉजिटिव माइंडेड पीपल हो, है ना। आप जानते हैं कोई भी गोल सेट करेंगे तो 70% लोग नेगेटिव होते हैं। क्यों यास्मीन, am I right or wrong? यस सर। है ना, आपने देखा हो जिंदगी में कोई भी गोल सेट करेंगे तो 70% लोग आपके नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव लोगों को छोड़ दें। कभी कभी अपनी फैमिली भी नेगेटिव हो जाते हैं जब कोई गोल सेट करते हैं, तो वो कहते हैं तुम क्या करोगे, तुम्हारा ये काम करना, ये क्या कर लोगे आप, तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना, बहुत सारी बातें होती हैं। तो डिस्कस विद पीपल हु ऑलवेज हेल्प यू, हु आर पॉजिटिव माइंडेड पीपल। ओनली पॉजिटिव माइंडेड पीपल से बात करनी चाहिए आपको। गोल को सेट करना है, प्राप्त करना है, कोशिश करें नेगेटिव माइंडेड पीपल से अलग हो जाएं आप, उनसे बातें ना करें। खास दोस्त भी हो तो उनसे बात ना करें, कभी कभी मिलने अलग बात है। सेकंड, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, लाइव और डे अल्फा स्टेट। जैसे मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, देखता हूँ कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं आंख बंद करके देखता हूँ कि मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, है ना, दुनिया की तरह। मुझे जाता हुआ मर्सिडीज नजर आता है, आता हुआ मर्सिडीज नजर आता है। ये सारी गोल्स होती हैं, इसको जिंदगी जिए आप, है ना, मिलने से पहले ही आप जी लें आप इसको विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब आंखों में बस आना चाहिए कि आप उसको यूज कर रहे हैं आप। मेंटेन अ गोल और जर्नल डायरी, और एक डायरी मेंटेन करें, इसमें कि लिखें कि आज मैंने इस गोल के लिए क्या किया, है ना, इस गोल को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, ऐसे करके मेंटेन करते रहें डायरी पर डे। देन इट इज वेरी इजी। आपने सुना होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग कैन बी हैड बाय dint ऑफ हार्ड कम स्मार्ट लेबर एंड कंसंट्रेशन। और आपने इसके साथ साथ ये भी सुना होगा, whatever you are today you are because of your habits। आप जो भी हैं आज, आज आप अपनी आदतों की वजह से हैं।
अगर अच्छी आदत है तो देखो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो देखो अपनी आदत को, अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो तो देखो अपनी आदत को। तो जो भी आप हैं अपनी आदतों की वजह से हैं, अपनी एटीट्यूड की वजह से हैं, राइट। दुनिया में बहुत सारे बंदे होते हैं। तो लेट अस सी नेक्स्ट वन। अभी हमारे फ्रेंड ने कहा कि स्मार्ट के बारे में, किसने कहा था स्मार्ट के बारे में? कोमल ने कहा था क्या? नो सर। किसने बोला था बताइए आपका नाम? किसने बोला था? है कि चली गई? अच्छा नहीं है क्लास में? अच्छा, चले गए लगता है ना। उन्होंने बोला था स्मार्ट गोल कैसा होना चाहिए? गोल शुड बी स्मार्ट। गोल कैसा होना चाहिए आपका? इट शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, और टी का मतलब टाइम बाउंड, है ना। आपने देखा होगा कितनी बार लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा, है ना। अब ये बोलने के लिए तो सही है, बट ये स्पेसिफिक नहीं हुआ, राइट। कुछ चीजें होती हैं जो इम्पॉसिबल होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आने वाले समय में पॉसिबल होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि आपको याद है आज से 25 साल पहले जो आज आपके सामने है ना। आज आप बैठे बैठे अमेरिका से बात कर लेते हैं, इंग्लैंड से बात कर लेते हैं, लेकिन 25 साल पहले कोई जो कहता था कि यार हम इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका के लोगों से बात कर लेंगे, अमेरिका से सामान मंगवा लेंगे, तो कहता था पागल है। क्यों? am I right और रॉन्ग मधुलिका? 25 साल पहले की बात बताइए। यस सर। है ना, उसमें लोग पागल कहते होंगे ना। यस सर। कोई कहता था हवा में बस उड़ेंगी, हवा से हम बस को उठा के अमेरिका ले जाएंगे, अमेरिका से हवा मतलब अमेरिका से मेट्रो जैसे ट्रेन को हम उठा के ले आएंगे इंडिया में, है ना। लोग कहते हैं पागल कह रहा है। बताओ हवा में कोई चीज फेंकेंगे तो नीचे गिर जाता है, तो ऊपर में उड़ के कैसे जा सकता है कोई? तो बहुत सारी असंभव चीजें थी जो संभव हो गई हैं। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि तारे तोड़ना असंभव है, राइट। सिचुएशन के अनुसार वो भी संभव हो सकता है, क्योंकि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता। हमें जो आज असंभव लगता है, बहुत सारे असंभव काम को लोगों ने संभव करके दिखाया है। तो लेट अस से हम बात करते हैं जो चीजें होनी चाहिए, तो आपको लगना चाहिए कि चीजें हो रहा। एक गरीब इंसान मर्सिडीज नहीं ले सकता, राइट, लेकिन वो गोल सेट कर सकता है तो ले सकता है, हाँ या ना। क्योंकि आज आपके सामने रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन 10 साल के बाद क्या रास्ता होगा वो आपको नहीं पता है। क्यों ऐसा है क्या? 10 साल के बाद जो होना है वो आपको नहीं पता, लेकिन जब आप काम करेंगे उस पर तो अपने आप हो जाएगा। आपको पता है जियो, अंबानी ने जब जियो के बारे में सोचा था तो 10 साल पहले प्लान बनाया होगा, हाँ या नहीं? एक ही दिन में दे दिया उन्होंने, बताइए। हाँ जी, अंबानी ने 10 साल पहले सोचा होगा या एक ही दिन में लोगों को दे दिया जियो? शिखर कुमारी बताएं प्लीज। यास्मीन, कोमल कुमारी बताइए। कोई भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। कोई भी प्लान 5 साल पहले 10 साल पहले बनानी पड़ती है। आज अदानी ने जो गैस घर घर में पहुंचाया उन्होंने, उसके लिए कम से कम 10 साल पहले सोचा होगा, हाँ या ना? यस सर। है ना, तो 10 साल पहले सोचा होगा, है ना। उसके बाद उन्हें प्लान बनाया होगा, प्लान बनाने के बाद उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन ली होगी, है ना। परमिशन लेने के बाद उन्होंने एक काम स्टार्ट किया होगा, और जब काम फिनिश हो गया तो उन्होंने उसमें फ्री कुछ दिन के लिए दिया होगा किसी को, फिर उन्होंने पैसा लेना शुरू किया, राइट। लाखों करोड़ रुपए लगाए उन्होंने, और तब आपसे जाकर 400-500 रुपए ले रहे हैं महीने का, आया ना।
कहने का मतलब होता है कुछ चीजें जो आप नहीं जानते हैं लेकिन आपको उसके लिए प्लान बनानी पड़ती है। आज से 10 साल के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था पहले कि अभी कोरोना आई हुई है ना पिछले साल से 2 साल से। क्या 10 साल पहले किसी को पता था कि कोरोना आने वाली है? नहीं। नो सर। फिर भी लोगों ने अपनी बिजनेस के बारे में अपनी पॉलिसी बनाई कि 10 साल के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, 20 साल के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, है ना? ऐसे लोग बनाते हैं और दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसी को गोल सेटिंग कहते हैं और उस पर काम करते हैं, राइट? तो 5 मिनट्स में ये ऑफ हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। एक बार दोबारा से ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही ऑफ होगा दोबारा से लिंक क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा। फिर जूम पे 40 मिनट्स का ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने कहा योर गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, राइट? नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक? का मतलब क्या होता है? The goal should be described as specifically and definitely as possible, है ना? थोड़ा सा मैं इसमें बात करना चाहता हूँ। जनरली क्या होता है, अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि बहुत सारे बंदे गरीब होते हैं, है ना, और वो सोचते कि मैं मर्सिडीज ले लूँ, BMW ले लूँ, तो उनके लिए तो असंभव नजर आता है। क्यों होता है ना? वो बेचारे खाने के लिए घर पे नहीं है और वो सपने बना ले कि मैं मर्सिडीज 70 लाख की ले लूँ। लेकिन माय डियर फ्रेंड, उस समय तो असंभव है, लेकिन जो टाइम फिक्स कर लिया 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, तो 15 साल में हो सकता है वो क्या से क्या बन सकता है कोई नहीं जानता। आया ना? am I right or wrong? क्योंकि गोल बना के जब आप चलेंगे तो आप उस पर काम करेंगे और जब आप काम करेंगे तो रास्ते में हर तरीके के बंदे, हर तरह से बंदे आपके मिलेंगे हेल्प करने के लिए, है ना? एवरी काइंड ऑफ पीपल you will meet with them, they would help you in achieving your goal. आप जानते होंगे कि जब आप रोड पे निकलते हैं तो बहुत सारे बंदे आपको मिलते हैं, लेकिन जब तक घर पे रहते हैं समझ नहीं आता कि काम होगा कि नहीं होगा। ऐसे खास बात है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है बता दूं आपको। आपने सोचा कि ये गोल ऑफ लूजिंग वेट, आपने कहा सर मेरे को तो वेट लूज करना है ना? बट दिस इज नॉट अ गोल। हाँ, अगर आपने कहा कि गोल ऑफ लूजिंग 5 किलोग्राम फ्रॉम अ करेंट वेट ऑफ 60 किलोग्राम, कि सर मेरा अभी 60 किलोग्राम का वेट है, मैं चाहता हूँ 5 किलोग्राम वेट कर लूँ तो 55 किलोग्राम मेरा वेट रह जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1 महीने के अंदर में 60 से 55 हो जाए, तो ये 1 महीने के अंदर में 5 किलोग्राम वेट लूज करने के बारे में आपने सोचा। माय डियर फ्रेंड, 1 मंथ का टाइम भी डिफाइन कर लिया आपने, 5 किलोग्राम कितना करना वो भी डिफाइन कर लिया आपने, और इस पे आप काम करेंगे एवरी डे, है ना? उसके लिए क्या क्या न्यूट्रिशन लेना है, क्या क्या करना है, सब कुछ सोचना पड़ेगा आपको। क्यों? am I right or wrong? ये सारी चीजें हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक बोलते हैं। आप डायरेक्ट ना बोले कि मुझे वेट लूज करना है, कितना लूज करना है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक माय डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरेबल। गोल शुड बी मेजरेबल। व्हाट डू यू मीन बाय मेजरेबल? का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, टू बी इफेक्टिव द गोल मस्ट बी मेजरेबल और ट्रैक डाउन टू इंश्योर वी नो वेयर वी स्टैंड। जैसे आपने सोच लिया वेट रिडक्शन करना है, 6 पैक एब्डोमेन करना है, रनिंग अ मैराथन इन अ स्टिपुलेटेड टाइम कैन बी मेजर्ड, कि 6 महीने के अंदर में, 2 महीने के अंदर में मुझे ऐसा दौड़ना है कि मैं इसके 4 चक्कर लगा लूं स्टेडियम का, मुझे 5 किलोग्राम वेट रिडक्शन करना है, 6 पैक एब्डोमेन चाहिए मेरा, राइट? इस मेजरेबल आपने कर लिया है ना, आप मेजर करके अपना गोल सेट कर रहे हैं, तो दिस शुड बी मेजरेबल होनी चाहिए। अचीवेबल। This is an art to goal setting that revolves around the goals differently. A goal too easy is not energizing. A goal too difficult seems hopeless. गोल जो आप सेट करते माय डियर फ्रेंड, इतना भी आसान, जैसे आपने कहा सर मेरे को 10 रुपए कलम चाहिए, फिर 10 रुपए कलम तो कोई भी ले लेगा। अगर वही कहा कि मेरे को 2000 का कलम चाहिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस पे आपको, है ना? लेकिन आपने कह दिया कि 2 करोड़ का कलम पेन लेना है, राइट? या रोल्स रॉयस लेना है मेरे को 8 करोड़ का, थोड़ा सा होपलेस वाली बात हो जाएगी यहाँ पे अभी,
तो सोचना है आपको, अचीवेबल सोचना है। चलो पहले हम 8 करोड़ की गाड़ी नहीं लेंगे, पहले हम 40 लाख की गाड़ी ले लेंगे, फिर अगर होगा तो 60 लाख की गाड़ी ले लेंगे, फिर 2 करोड़ की गाड़ी ले लेंगे, फिर 4 करोड़ की गाड़ी ले लेंगे, जैसा होगा सिचुएशन के अनुसार, स्टेप वाइज। द गोल शुड बी डिफाइंड स्टेप वाइज माय डियर फ्रेंड, है ना। जैसे हमने अभी गाड़ी के बारे में सोचा, मर्सिडीज के बारे में सोचा, तो हमने एक गाड़ी ले ली, अभी छोटा सा गोल अचीव किया, फिर इसके बाद वहां पे पहुंचेंगे जहां पे मर्सिडीज लेने की बात हो रही है। तो बोथ टू इजी एंड टू डिफिकल्ट आर गोल सेटिंग। नो नो, इतना इजी भी नहीं होनी चाहिए, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होनी चाहिए, राइट। सेट द लेवल ऑफ चैलेंज इज समवेयर इन बिटवीन। तो अभी आपने देखा गोल सेट करने के बारे में, और रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है ये बता दूं आपको। डू यू हैव द नॉलेज, स्किल सेट एंड कॉम्पिटेंसी टू रीच योर गोल। अब ये रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो गोल आप सेट करते हैं उसके लिए आपके पास नॉलेज है क्या, स्किल सेट है क्या, एंड आर यू कॉम्पिटेंट टू रीच योर गोल। These things are very very important my dear friend. If your goal involves weight loss, अगर ये वेट लॉस करता है, वेट लॉस पे है आपका, okay, and if your goal involves weight loss, do you know all you should know about nutrition? अगर आपने सोच लिया कि मुझे वेट लॉस करनी है, तो वेट लॉस करने के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए आपको पता है, उसके बारे में क्या क्या खाना है, पौष्टिक आहार क्या क्या नहीं खाना है, कितनी कैलोरी लेनी है ना। अबाउट मेटाबॉलिज्म यू शुड नो दैट. If not, perhaps your first goal should be to gather this information. अगर नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन कि मुझे वहां पहुंचने के लिए, वो काम करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम कैसे करेंगे, हाउ टू डू दैट. So you should have the knowledge regarding that, my dear friend. You should have the skill set regarding this one. You should be competent to reach your goal, right? तो ये रियलिस्टिक होती है, my dear. अब हमने सोच लिया कि हमें ये काम करना है बट नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे करेंगे आप, राइट. नेक्स्ट, गोल शुड बी टाइम बाउंड. अगर आपने सोच लिया, जैसे एक बार की बात बता रहा हूं, कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान के थे और इंडिया के थे, दोनों खेलने लगे, सुबह से शाम तक खेलते खेलते रहे लेकिन गोल नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं पे गोल बनाया ही नहीं. गोल सेट का होता है ना, तो वो था ही नहीं जहां पे गोल किया जाए. तो आप जब तक गोल सेट नहीं करेंगे, आप लाइफ में भी खेलते रहेंगे, सुबह शाम तक दौड़ते रहेंगे, बट कहां जाएं आपको पता नहीं. एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अगर आप रेलवे स्टेशन पे चले जाएं और पूछे कि टिकट दे दो, राइट, और टिकट काउंटर वाला पूछेगा कहां जाना है, आपने बोला कहीं का दे दो, वो बोले कहीं का नहीं मिलता, बताओ कहां जाना है. देखो आप माय डियर फ्रेंड, एक छोटी सी जगह जाने के लिए भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुझे कहां जाना है.